In a perfect world, a pendulum swings forever. It keeps on swinging. But in the real world, every oscillation is a tug of war between the restoring forces and the damping forces. Restoring forces tries to keep the motions alive, but the damping forces from the surrounding medium tries to choke out the motions. And this is the damped simple harmonic motions. Think of your grandfather clock. What happens here is that if we don't provide the external energy, the battle is lost within a minute. The amplitude dies, energy turns into heat, and the motion vanishes. How do we predict exactly when it stops? Most students of JEE and NEET fails here because they try to memorize the massive displacement equations. They see the math and in these lectures, I am breaking down the NCERT Oscillations Chapter 14, Section 14.9, the damped simple harmonic motion, line by line. What you will be mastering in this lecture is the tug of war concept, which is a deep dive into the battle between the restoring forces which tries to keep the oscillations going on and the damping forces of the surrounding medium which is trying to choke out the motions. We will build the fundamental equations of the damped simple harmonic motions using the concept of Newton's second law. We will break down the displacement equations to understand exactly what the exponential decays and the phase component represent. We will find out the conditions for small oscillations. We will derive the equations of half time t 1 by 2. That's the exact time that it takes for the amplitude to drop to the half of its original values. Further, a step-by-step analysis of displacement time graph showing how the envelope of motion shrinks over the time. And finally, we will understand how energies decays in a damped oscillation. So stay with me till the end because this lecture can completely clear your damping concept. If you enjoy learning mechanics in this style, do subscribe the channel. I will regularly upload the concept lecture that will help you build the real understanding. Now let's move on to the detailed explanation. We are discussing about the damped simple harmonic motion. So we know that the motion of a simple pendulum swinging in the air dies out eventually. ये कह रहा है कि जो एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि when we swing a pendulum in the air, ठीक है, जब हम किसी पेंडुलम को एयर में स्विंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो उसका जो मोशन होता है ना, इट डाइज आउट. ये जो इसका मोशन होता है इस तरह से, तो जब हम एयर में उसको स्विंग करते हैं तो उसका मोशन क्या होता है, इट डाइज आउट इवेंचुअली, धीरे धीरे करके वो जाकर के अल्टीमेटली वो रेस्ट में आ जाता है. और दिस इज बिकॉज जो दो फोर्सेस पिक्चर में आते हैं वो होते हैं एयर ड्रैग. कौन कौन से फोर्सेस पिक्चर में आ गए? अभी एयर ड्रैग आ गया पिक्चर में, एयर ड्रैग, ठीक है. दिस इज बिकॉज द एयर ड्रैग एंड द फ्रिक्शन एट द सपोर्ट. और दूसरा कौन सा फोर्स आ गया? फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? एक तो इस पॉइंट पे जहां से स्ट्रिंग इस बॉब के साथ अटैच्ड होगा एंड द अदर पॉइंट विल बी दिस. ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये जो पॉइंट है दिस, इस दो पॉइंटों पे फ्रिक्शन लग रहा होगा. तो इसके इन फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि मतलब मोशन जो होता है वो हमारा वो क्या होता है, इवेंचुअली स्टॉप हो जाता है. तो इस तरह के मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं? ये डैम्प्ड ऑक्सिलेशंस कहते हैं. तो इन डैम्प्ड ऑक्सिलेशंस में क्या होता है कि जो एनर्जी होता है सिस्टम का, इट इज डिसिपेटेड कंटिन्यूअसली, ठीक है. सो एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअसली डिसिपेट हो रहा होता है. अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि डिसिपेट हो रहा होता है, इसको जरा हम लोग इस ढंग से समझते हैं. जैसे सपोज करो कि दिस इज द पेंडुलम और ये पेंडुलम जैसे आपका रोटेट कर रहा था, तो आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस. ये जो उसका पाथ होगा वो ऐसा होगा. तो जब ये पेंडुलम का मोशन इधर की ओर होगा, इधर इस साइड में जब मोशन होगा, तो एक्चुअली में क्या होगा कि इधर का जो यहाँ जो एयर पार्टिकल्स हैं, यहाँ जो एयर अवेलेबल है इस स्पेस में, तो ये जब इधर की ओर मूव करेगा तो ये बॉब क्या करेगा? इस एयर को रास्ते से हटाएगा. इट ट्राइज टू पुशेस द एयर और फ्रॉम द पाथ. और इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि ये जो एयर है वो इस पे अपोजिट डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शंस में एक फोर्स अप्लाई करेगा. एंड दिस इज द व्हाट, ये जो फोर्स कहलाएगा यही होगा एयर ड्रैग का फोर्स Fd. सो व्हेन द बॉब मूव्स टू द राइट, जब बॉब मेरा राइटवर्ड जा रहा है, कब? इधर से इधर की ओर जा रहा है, मतलब राइटवर्ड जा रहा है, तो इट्स वेलोसिटी वेक्टर पॉइंट्स राइट, ठीक है. आप देख रहे हैं ये जो वेलोसिटी वेक्टर है v, एक इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द राइट पॉइंट कर रहा है. एंड टू डू दिस इट मस्ट फिजिकली पुशेस द एयर मॉलिक्यूल आउट ऑफ द वे. तो जो एयर मॉलिक्यूल इसके रास्ते में पड़े हुए हैं, इस एयर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? वो आउट ऑफ द वे पुश करेगा. तो एयर मॉलिक्यूल न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एंड दैट फोर्स इज बेसिकली द ड्रैग फोर्स, जो कि विस्कस फोर्स होता है. एक तरह से उसको विस्कस फोर्स कहा जाता है. सो दीज एयर मॉलिक्यूल पुशेस बैक, एयर ड्रैग एक्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट.
तो क्या हुआ, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एयर ड्रैग लगा। एंड यू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर इज दैट कि जब मोशन हो रहा था तभी इस बॉब को हवा को हटाने की जरूरत थी, एंड दैट्स व्हाई द ड्रैग फोर्स इज एक्टिंग देयर। अगर ये रेस्ट में हो जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मान लो कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे जहां पे बॉब मोमेंटरली रेस्ट में आ जाता है, जैसे मान लो ये अगर एक्सट्रीम पोजीशन है और यहाँ पे अगर ये रेस्ट में है, तो इस मोमेंट पे इस पे ड्रैग फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये मिड पोजीशन से, मान लो इस ये पॉइंट जो है ना, यहाँ पे बॉब का एक्सट्रीम पोजीशन, सपोज करो कि जो एक्सट्रीम पोजीशन से बॉब का ये पॉइंट है, ठीक है, ये है और ये पॉइंट, ये क्या है, ये दोनों पॉइंट अगर सपोज करो ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, क्या ये एक्सट्रीम पोजीशन से, तो यहाँ पे बॉब क्या होता है, मोमेंटरली रेस्ट में होता है, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होता है। उस केसेस में ड्रैग फोर्स का डायरेक्शन अगर कोई पूछ दे तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पे चूंकि बॉब अभी मोमेंटरली रेस्ट में है, दैट्स व्हाई देयर इज नो ड्रैग फोर्स एक्टिंग एट द एक्सट्रीम पोजीशन। बट जब वो मोशन कर रहा है, जैसे इधर की ओर मोशन कर रहा है, तो यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स है जो यहाँ इस स्पेस में अवेलेबल है, इसको वो इधर की ओर पुश कर रहा है, अपने रास्ते से हटा रहा है, एंड दैट्स व्हाई द एयर पार्टिकल इज सेल्फ पुशिंग इन द बॉब अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन, और इसलिए ड्रैग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो सपोज करो कि जैसे बॉब यहाँ आ गया, मोमेंटली रेस्ट में है, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा, जो कि आपको लगेगा इधर की ओर इस डायरेक्शन में, तो इस फोर्स की वजह से जो इधर की जाने की टेंडेंसी आएगी, तो जब इधर की ओर बॉब मूव करेगा तो ये क्या करेगा, जो अपना जो एयर मॉलिक्यूल्स है, इसके इस पोर्शन में जो एयर मॉलिक्यूल्स है यहाँ, इसको ये इधर जाने के क्रम में हटाएगा, एंड दैट्स व्हाई दीस एयर मॉलिक्यूल पुशेस इट इन दिस डायरेक्शन, इसलिए ड्रैग फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप ये समझ चुके हैं कि जब बॉब मूव्स टू द लेफ्ट, क्या हो रहा है कि जब ये जो आपका बॉब है लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, मतलब इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये क्या हो गया, व्हेन द बॉब मूव्स टू द लेफ्ट द वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। आप देख रहे हैं कि जब ये जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियली इधर की ओर वेलोसिटी होगी, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड दैट्स व्हाई एयर ड्रैग जो है अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करेगा, एक्ट टुवर्ड्स द राइट। तो पूरे मोशन के दौरान आप देख रहे हैं कि इस ऑक्सीलेशन में अगर वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो एयर ड्रैग इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, एफ डी। अगर वेलोसिटी इधर है, इधर है, तो एयर ड्रैग इधर की ओर एक्ट कर रहा है, एफ डी। तो एयर ड्रैग इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉब। क्या आपने कंक्लूड किया कि जब आपका ऑक्सीलेशन होता है तो एयर चाहे जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो भी हो, मतलब डायरेक्शन जिस भी डायरेक्शन में जो है बॉब मूव कर रहा हो, एयर ड्रैग इज ऑलवेज अपोजिंग द मोशन। एक्सट्रीम इंड्स पे, मतलब जहां पे जैसे ये पॉइंट क्या थे, तो एक्सट्रीम इंड्स थे, एक्सट्रीम इंड्स पे या टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट मोमेंटरली रीचेस, जैसे मान लो यहाँ पे एक्सट्रीम इंड आ रहा है, यहाँ से वो क्या हो रहा है, इधर जाने के बजाय फिर रेस्ट में आता है, फिर बैकवर्ड जाता है, तो एट एक्सट्रीम इंड पे बॉब मोमेंटरली स्टॉप्स एट द टॉप ऑफ द स्विंग, वेलोसिटी बिकम जीरो, और चूंकि वेलोसिटी जीरो हो जाता है, सिंस इट इज नॉट मूविंग, इट इज नॉट पुशिंग द एयर, तो इसको हवा को पुश करने की जरूरत नहीं है, तो ड्रैग फोर्स क्या हो रहा है, वैनिश हो जा रहा है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि जब ऑक्सीलेशन एक्चुअली में हो रहा होता है तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे ड्रैग फोर्स क्या लगता है, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी मोमेंटरली जीरो हो जाती है, देयर इज नो एयर टू पुश, एंड दैट्स व्हाई द ड्रैग फोर्स एट द एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो, क्योंकि वहां पे क्या है, देयर इज नो वेलोसिटी। सो वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो एयर ड्रैग जीरो हो गया। लेकिन जो ये जो पोजीशंस है, इस पोजीशंस पे जब बॉब आता है, जिसको मीन पोजीशंस बोलते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, यू नो फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट कांसेप्ट, एंड दैट्स व्हाई चूंकि इसके पास यहाँ या तो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, एंड यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी, एंड दैट्स व्हाई एयर ड्रैग इस पोजीशंस पे मैक्सिमम लगेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एयर ड्रैग बॉब के ऑक्सीलेशंस के दौरान एयर ड्रैग किस पोजीशंस पे मैक्सिमम लग रहा है, तो जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब जो मीन पोजीशंस पे उसको मैक्सिमम एयर ड्रैग का सामना करना पड़ रहा है। सो फाइनली यू गॉट दिस इनटू योर माइंड कि जो एयर ड्रैग है, ठीक है, इट ऑलवेज रिमूव्स द एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, क्योंकि जो आपका पेंडुलम था, ये जो पेंडुलम है जो ये एक्सीलेट कर रहा था, तो एयर ड्रैग जो कि इसके अगर ये इधर की ओर मोशन कर रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन में एयर ड्रैग लग रहा था। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जो सिस्टम है हमारा, किसका सिस्टम है, जो हमारा ये स्प्रिंग, ये जो हमारा स्ट्रिंग है और प्लस मास, यही सिस्टम है हमारा, और इसी सिस्टम में एनर्जी कहां से आ रहा है, जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं थीटा एंगल से। जैसे मान लो ये पेंडुलम है, ठीक है, तो ये पेंडुलम तो मीन पोजीशंस पे ऑक्सीलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम इसको यहाँ ले जाकर के इसको छोड़ते हैं तभी नहीं ऑक्सीलेशन स्टार्ट करता है। तो ये जब हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इसमें एनर्जी आता हुआ क्या आता है, mg sin थीटा, mg थीटा जो इसकी एनर्जी होती है, रिस्टोरिंग फोर्स, इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही तो इसके पास एनर्जी होती है, ठीक है, और यही रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती रहती है। लेकिन अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं लीक हो रही है। क्यों, कहां लीक हो रही है, क्योंकि ये जो सिस्टम है आपका, ये जो आपका स्ट्रिंग और मास का जो बॉब का जो सिस्टम है, इट हैज टू डू द वर्क टू रिमूव द एयर मॉलिक्यूल आउट ऑफ द वे। तो क्या हो रहा है कि लगातार जब इसको काम करना पड़ रहा है तो इसका जो एनर्जी है, ये जो इस फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो सिस्टम में एनर्जी है वो क्या हो रही है, लीक हो रही है। और ये एक्चुअली कहां लीक हो रही है, द सिस्टम ऑफ बॉब एंड द स्ट्रिंग has to do the work against the air molecule, उसको हटाना पड़ रहा है रास्तों से। तो क्या हो रहा है, सिस्टम इज डूइंग सम पॉजिटिव वर्क इन रिमूविंग द पार्टिकल,
ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी घट रही है धीरे धीरे धीरे। या आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो आपके ड्रैग फोर्सेस हैं जो कि एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से लग रहे हैं, फोर्सेस हैं, कौन से ड्रैग फोर्स जो कि एयर की वजह से लग रहा है, तो ये ड्रैग फोर्सेस क्या कर रहा है, ये हमारे सिस्टम पे, जो हमारा सिस्टम क्या है, तो ये हमारा सिस्टम क्या, ये है स्प्रिंग प्लस बॉब, दिस इज आवर सिस्टम स्प्रिंग प्लस बॉब। इस सिस्टम पे ये ड्रैग फोर्स क्या कर रहा है, तो निगेटिव वर्क कर रहा है। और निगेटिव वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा है। सो इट इज डूइंग नेगेटिव वर्क एंड दिस नेगेटिव वर्क इज कंटिन्यूअसली सिपिंग आउट द एनर्जी फ्रॉम आवर सिस्टम एंड दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि एयर ड्रैग ऑलवेज रिमूव्स एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। इट नेवर हेल्प्स द मोशंस। मोशंस को कौन हेल्प कर रहा है, मोशन इज बीइंग सस्टेन्ड ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स mg थीटा। ठीक है, इसकी वजह से ये जो mg वेट लग रहा है और इसका जो ये कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जो ये कंपोनेंट है ना, ठीक है, दिस इज द mg sin थीटा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, तो इसका जो ये कंपोनेंट जो होता है इसकी वजह से ही मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि बिकॉज इट अपोजेस द वेलोसिटी इट डज नेगेटिव वर्क एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीलेशन ग्रेजुअली डाइज आउट। ठीक है, तो अब जैसे हम ये कह सकते थे कि सर डैम्प, जब आपका डैम्पिंग डैम सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो उस केसेस में चूंकि एनर्जी लीक कर रहा है तो उसको तो ऑक्सीलेशन होना ही नहीं चाहिए। तो ये हम नहीं कह सकते कि ऑक्सीलेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टिल प्रेजेंट इन स्पाइट ऑफ हैविंग द डैम्पिंग इफेक्ट। ये ड्रैग फोर्स के साथ साथ रिस्टोरिंग फोर्स भी तो अभी मौजूद है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, तो ऑक्सीलेशन कराना चाह रहा है, लेकिन ड्रैग फोर्स क्या कर रहा है, बार बार कंटिन्यूअसली एनर्जी को सिप कर रहा है, दैट्स व्हाई वो जो ऑक्सीलेशन है वो धीरे धीरे डाई आउट हो रही है। ठीक है, तो व्हाई द मोशन डाइज, नॉट बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स डिसअपीयर। ये बात याद रखिएगा कि एयर ड्रैग के आने से, जब एयर ड्रैग जो है और फ्रिक्शन फोर्स जब पिक्चर में आया, एयर ड्रैग, ठीक है, एयर ड्रैग और फ्रिक्शन फोर्स के पिक्चर में आने से क्या रिस्टोरिंग फोर्स डिसअपीयर हो गया, नहीं, बट बिकॉज द एनर्जी इज कंटिन्यूअसली लॉस्ट। क्यों लॉस्ट हो रहा है, क्योंकि ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट में हमारे सिस्टम को काम करना पड़ रहा है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई एनर्जी इज कंटिन्यूअसली लॉस्ट। अब हम ये कह सकते हैं कि फिर भी व्हाई इट स्टिल पीरियोडिक। द पीरियोडिक इसीलिए है, हम इसको अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक कहते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे ये पेंडुलम है, सपोज करो कि ये पेंडुलम है, तो जब एक बार ऑक्सीलेट करेगा इसकी एम्पलीट्यूड ये होगी, ठीक है, दूसरी बार में एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी तो उसकी एम्पलीट्यूड और कम होती जाएगी, फिर कम होती जाएगी, अल्टीमेटली ये अपना रेस्ट पे आकर के मतलब मीन पोजीशंस पे आके अटक जाएगा। तो बिकॉज ऑफ डैम्पिंग क्या हो रहा है कि व्हाई इट इज स्टिल पीरियोडिक, बिकॉज डैम्पिंग इज वीक। डैम्पिंग मतलब जो एयर ड्रैग की वजह से जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स के कंपैरिजन में कमजोर है एंड दैट्स व्हाई द रिस्टोरिंग फोर्स स्टिल डोमिनेट्स द मोशन। तो यहाँ एक टग ऑफ वार चल रहा है, वार बिटवीन व्हाट, देयर इज अ वार गोइंग ऑन बिटवीन व्हाट, ड्रैग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, इस दोनों के बीच में एक टग ऑफ वार का स्थिति है। और चूंकि हमारा रिस्टोरिंग फोर्स अभी भी डोमिनेंट फोर्स है एंड दैट्स व्हाई जो है सो हम ये डैम्पिंग के कंपैरिजन में रिस्टोरिंग फोर्स डोमिनेट है एंड दैट्स व्हाई द मोशन स्टिल अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक माना जाता है। अब देख सकते हैं कि जब अगर आप डैम्पिंग नहीं होती तो ये जो एक्सटी प्लॉट था वो कंप्लीटली ये एक ही ऐसा दिखता है। ठीक है, ये कंप्लीटली ऐसा दिखता है। इफ देयर वाज नो डैम्पिंग तो सेम एम्पलीट्यूड हर मतलब साइकिल में रिपीट होता है, बट डैम्पिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आप यहां से देख रहे हैं कि यहां से स्टार्ट हुआ है वन कंप्लीट साइकिल में, आप एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, अदर साइकिल जब रिपीट हो रहा है तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। ठीक है, यू कैन सी देयर एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इस अगर आप देखें तो इस साइकिल में देखें तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। सो क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डैम्पिंग इसी को कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड घट रहा है, बट टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट द सेम। क्यों, क्योंकि हमारा जो है सो जो डोमिनेंट क्या है, हमारा डोमिनेंट अभी भी रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये जो एनर्जी सेव हो रही है, ये जो एनर्जी हमारा पेंडुलम खर्च कर रहा है, ये जो बॉब एयर ड्रैग को हटाने में जो एनर्जी खर्च कर रहा है वो क्या हो रहा है, कहीं लीक तो नहीं हो जा रहा है, वो क्या हो रहा है, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। यू कैन सी दैट कि जो सराउंडिंग पार्टिकल्स है उसका थर्मल एनर्जी जो है सब बढ़ रही है। सिस्टम इज डिसिपेटेड कंटिन्यूअसली बट फॉर स्मॉल डैम्पिंग द ऑक्सीलेशंस रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक। तो याद रखिएगा, स्मॉल डैम्पिंग का जब केस होता है, स्मॉल डैम्पिंग के कहने का क्या मतलब हुआ कि जो एयर ड्रैग और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या हो रहा है, इसका जो इफेक्ट है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स के कंपैरिजन में क्या है, ये रिस्टोरिंग फोर्स के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, जो ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है इसके कंपैरिजन में इसका इन्फ्लुएंस कम है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं क्या चीज कि अप्रोक्सीमेटली, सो यहाँ क्या करें, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिसिपेटेड कंटिन्यूअसली बट फॉर स्मॉल डैम्पिंग। ठीक है, जब डैम्पिंग बहुत कम होती है द ऑक्सीलेशन रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक। तो याद रखिएगा ये जो टर्म्स इसने यूज किया है कि ऑक्सीलेशंस को अप्रोक्सीमेटली ये पीरियोडिक माना है। ठीक है, ये जो टर्म है अप्रोक्सीमेशन, ये जो है ऑक्सीलेशन रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली बट अप्रोक्सीमेटली ये पीरियोडिक रहता है। ऑक्सीलेशन क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक रहता है। एंड द डिसिपेटिंग फोर्स आर जनरली द फ्रिक्शनल फोर्स
ठीक है। जो डिसिपेटिंग फोर्स है आर जनरली द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो एयर ड्रैग है आपका, जो ये एयर ड्रैग आप देख रहे हो, ठीक है, ड्रैग या नहीं तो जो ये यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, ये सब क्या है एक्चुअली में, तो दे आर द फ्रिक्शनल नेचर के फोर्स होते हैं, ठीक है। एंड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ सच एक्सटर्नल फोर्स ऑन द मोशन ऑफ एन ऑक्सीलेटर, लेट अस कंसीडर द सिस्टम शोन इन द फिगर। तो हम लोगों ने एक जनरल सिस्टम पे इस फोर्स का इफेक्ट देख लिया कि कैसे मतलब जो ड्रैग फोर्सेस और हमारा जो इन्फ्लुएंस होता है इस सिंपल पेंडुलम पे। नाउ वी हैव एन एग्जांपल हियर shown in the figure 14.9, ठीक है। and the example is this, here you can see कि ये क्या है, ये एक रिजिड सपोर्ट है और इस सपोर्ट के साथ हमारा एक स्प्रिंग अटैच्ड है और स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है और ये आसपास जो है वो क्या है, ये सराउंडिंग मीडियम है। सराउंडिंग मीडियम मतलब एयर पार्टिकल्स या गैसेस जो भी आप कह सकते हो। तो अभी क्या है कि ये मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशंस में, द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट्स व्हाई पोजीशन हमने x = 0 से कैलिब्रेट किया हुआ है, ठीक है। ये x = 0 का पोजीशन कैलिब्रेटेड है। अब अगर हम इस ब्लॉक को नीचे इधर की ओर हम पुश करते हैं और रिलीज करते हैं या ऊपर की ओर ले जाकर रिलीज करते हैं तो क्या होगा, एक ऑक्सीलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। बट यहाँ जो ऑक्सीलेशन होगा और जो हम लोगों ने आइडियल कंडीशंस में ऑक्सीलेशन देखा था उसमें कुछ डिफरेंस होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया। आइडियल कंडीशंस में क्या होता था कि हमारा ब्लॉक सराउंडिंग पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं करता था। But here, while the block is moving upward or moving downward, it has to pushes the air out of the way। यहाँ जो हवाएं हैं इस हवाओं को उसको ठेलना है, आउट ऑफ द वे ले जाना है। जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो ये हवाओं को ठेल के आउट ऑफ द वे ले जाएगा। तो जब ये हवा पे फोर्स लगाएगा तो हवा इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एंड दैट्स व्हाई ये जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, ब्लॉक के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो यहाँ जो हम इस केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है कि here the block of mass m is connected to a elastic spring of spring constant k। तो ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं ना, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो k है, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ मास m जो है, ये m मास का ब्लॉक इस इलास्टिक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। इफ द ब्लॉक इज पुश्ड डाउन ए लिटिल, अगर इस ब्लॉक को नीचे मतलब पुश डाउन करते हैं, नीचे ले जाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस ले जाते हैं नीचे, एंड इज रिलीज्ड, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ओमेगा इज इक्वल टू this as seen in the figure 14.20 जो है, so as seen in the equation 14.20। however in practice, ठीक है, the surrounding medium will exert a damping force on the motion of the block and mechanical energy of the block spring system decreases। सेम जैसा कि हमारा पेंडुलम के केस में हो रहा था, तो यहाँ इस केसेस में जब हम डैम्पिंग इफेक्ट देंगे तो ये आइडियलिस्टिक कंडीशन में ये इक्वेशन होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। जब ये ऑक्सीलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम पूछेंगे और जब ये मानेंगे कि सराउंडिंग पार्टिकल के साथ ये ब्लॉक इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होगा। बट जब सराउंडिंग मीडियम के साथ इस ब्लॉक को इंटरेक्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा कि एयर ड्रैग जो होगा, क्योंकि एयर ड्रैग कैसे आ गया, क्योंकि हवा को पुश करना है तो हवा इसको बैकवर्ड पुश करेगा। सो एयर ड्रैग जो होगा विल एक्सर्ट अ डैम्पिंग फोर्स ऑन द मोशन ऑफ द ब्लॉक और इसी वजह से मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम्स विल डिक्रीजेस एंड द एनर्जी लॉस विल अपीयर एज अ हीट ऑफ द सराउंडिंग मीडिया, जैसा कि आपको सिंपल पेंडुलम के केस में हो रहा था। सो एक्चुअली में क्या हुआ इस पूरे मतलब इस एग्जांपल से अगर हम समझें इसको, तब सेटअप क्या ये है, तो यहाँ क्या है कि द विस्कस सराउंडिंग मीडियम, ये क्या है, विस्कस सराउंडिंग मीडियम जो एयर है वो क्या है, विस्कस फोर्स लगाएगा। तो विस्कस फोर्स लगाएगा, एक्सर्ट अ डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑक्सीलेटिंग स्प्रिंग, इवेंचुअली ब्रिंग इट टू द रेस्ट। तो जैसे मान लो कि आपने इसको डिस्टर्ब किया, आप इसको यहाँ से खींचा, अब यहाँ खींच करके आप यहाँ ले आए, तो स्प्रिंग इतना खींच गया, स्प्रिंग कितना खींचा, इतना एक्स्ट्रा आपने खींच दिया। जब आप इसको छोड़ोगे तो ये क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इधर की ओर काम करेगा एफ आर, और जब ये इधर की ओर मोशन है तो अभी तो रेस्ट में था, लेकिन जब मोशन के दौरान इस पे वेलोसिटी आ गई तो इसको हवा को ठेलना होगा, तो जो ड्रैग फोर्स होगा ना वो हवा इसको अपोजिट डायरेक्शंस में इधर की ओर लगाएगा, एफ डी ड्रैग फोर्स, ठीक है, ड्रैग फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में इस पे लगेगा। सो द टू कंपीटिंग फोर्सेस है, मतलब एक तरीके एक्चुअली में अगर देखो तो इस ऑक्सीलेशन में जो कि जहां सराउंडिंग पार्टिकल के साथ ये ब्लॉक इंटरेक्ट कर रहा है तो यहाँ एक टग ऑफ वार चल रहा है। क्या चल रहा है, वो जो रस्सी का जो खेल आपने देखा तो वो यहाँ चल रहा है। कैसे कि रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में डेवलप हुआ इलोंगेट डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है, ये क्या करेगा, इट ट्राइज टू कीप द ऑक्सीलेशन गोइंग ऑन, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है इट इज द ओनली फोर्स दैट इज ट्राइंग टू ऑक्सीलेट द सिस्टम। लेकिन जो डैम्पिंग फोर्स आपने देखा कि अगर मोशन अपोजिट इधर है तो इधर डैम्पिंग फोर्स होगा, और जब ब्लॉक यहाँ अपने पहुंचेगा और जब इधर की ओर मोशन होगा तो डैम्पिंग फोर्स फिर इधर की ओर लगेगा। तो डैम्पिंग फोर्स क्या करेगा, जो कि कहां से लग रहा है, सराउंडिंग मीडियम की वजह से लग रहा है, इट ट्राइज टू स्टॉप द मोशन बाय रिमूविंग एनर्जी। तो डैम्पिंग फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसके मोशन के, तो क्या हो रहा है, डैम्पिंग फोर्स इस सिस्टम पे निगेटिव वर्क कर रहा है। तो जब निगेटिव वर्क कर रहा है तो क्या होगा, डैम्पिंग फोर्स एक्चुअली में रिमूविंग द एनर्जी, ठीक है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि डैम्पिंग फोर्स क्या कर रहा है, तो एनर्जी को रिमूव कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियल एसएचएम में जहां एनर्जी क्या होता था, तो बैक एंड फोर्थ मूव होता था, काइनेटिक और पोटेंशियल में कन्वर्ट होता था, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता था। अगर ये पार्टिकल्स नहीं होते तो क्या होता कि मेरा जब आइडियल एसएचएम हो रहा होता, क्या होता, जब ये आइडियल एसएचएम का सिनेरियो होता तो क्या होता, जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स था, जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, और फिर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता काइनेटिक एनर्जी में, और ये इनफाइनाइटली चलता रहता।
बट यहाँ क्या हो रहा है कि ये तो आइडियल एसएचएम का केस नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन द मूविंग ब्लॉक एंड सराउंडिंग मीडियम। ये जो ब्लॉक जब मोशन में आता है तब इंटरेक्शन शुरू होता है। आप ये नहीं कहोगे कि जब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में था तब क्यों नहीं इंटरेक्ट किया, तब क्यों नहीं ड्रैग लगाया। यू कैन नॉट से दिस। जब वो मोशन में आता है ये ब्लॉक, तभी तो उसको अपने आसपास के एयर मॉलिक्यूल को पुश करना होता है, और तभी तो एयर मॉलिक्यूल इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग विस्कस ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो हो क्या रहा है कि द ब्लॉक इज नॉट ऑक्सीलेटिंग इन द वैक्यूम, एक्चुअली में द ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड और ए डेंस गैस। यहाँ जो आसपास है आप देख रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स है ये डेंस गैसेस हो सकते हैं या लिक्विड भी हो सकता है। तो जब एज द ब्लॉक हैज टू मूव अप एंड डाउन, इट मस्ट फिजिकली पुशेस द मॉलिक्यूल ऑफ सराउंडिंग मीडिया आउट ऑफ द वे। क्योंकि ब्लॉक को क्या करना है, ऊपर नीचे मोशन करना है, तो इसको फिजिकली पुश करना पड़ेगा इन सराउंडिंग मीडियम को, ठीक है, आउट ऑफ द वे, अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई ये सराउंडिंग मीडियम उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, एंड दैट फोर्स इज द डैम्पिंग फोर्स। तो क्या होगा कि इस ब्लॉक को, ये जो सिस्टम है हमारा स्प्रिंग ब्लॉक, इस सिस्टम पे जो ये ड्रैग फोर्स है वो क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है। तो जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे ऑक्सीलेटिंग सिस्टम क्या है, तो हमारा सिस्टम है स्प्रिंग और प्लस क्या है, तो ब्लॉक है, और इस पे जो हमारा डैम्पिंग फोर्स है, क्या चीज, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स क्या है, तो जो एयर ड्रैग है वो क्या कर रहा है, तो निगेटिव वर्क कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है सिस्टम पे, ठीक है। और अगर निगेटिव वर्क कर रहा है तो मतलब हमारे सिस्टम से जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसके पास एनर्जी है, हमारे सिस्टम से वो एनर्जी निकाल रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, निकाल रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम से एनर्जी बाहर आ रहा है। सो व्हेन द ब्लॉक पुशेस द मॉलिक्यूल, क्या हो रहा है कि सराउंडिंग मीडियम आउट ऑफ द वे, तो व्हेन द ब्लॉक पुशेस द मॉलिक्यूल ऑफ सराउंडिंग मीडियम आउट ऑफ द वे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, दिस मोशन क्रिएट्स ए विस्कस ड्रैग फोर्स। लग रहा है आपको, पता है विस्कस ड्रैग फोर्स काम कर रहा है। And because the damping force is active as long as the velocity is non-zero, क्योंकि जब तक ये मोशन में रहेगा तब तक ये डैम्पिंग फोर्स काम करेगा, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशंस पे फिर डैम्पिंग फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन जब तक ये मोशन में है, जब तभी तो उसको हवाओं को हटाने की जरूरत है, या फिर जो सराउंडिंग मीडियम्स को पुश करने की जरूरत है। एंड द सो सिस्टम इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द मीडियम एट ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट। तो ये जो सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है, ठीक है, इस सिस्टम पे अगर डैम्पिंग फोर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डैम्पिंग फोर्स निगेटिव वर्क कर रहा है, दैट्स व्हाई सिस्टम से एनर्जी बाहर निकाल रहा है। अगर ऐसे देखा जाए कि सिस्टम जो क्या करना पड़ रहा है, डैम्पिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है मोशन को बनाए रखने के लिए, एंड दैट्स व्हाई एनर्जी इज बीइंग लीकिंग आउट। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एनर्जी जो है सो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के केस में, इस ऑक्सीलेशन के केस में लीक कर रहा है। तो फॉर स्मॉल डैम्पिंग जब होगा, जब हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल डैम्पिंग है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफआर, जो रिस्टोरिंग फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन द डैम्पिंग फोर्स। दिस इज आवर एज्यूम्पशन फॉर स्मॉल डैम्पिंग ऑक्सीलेशन रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द डैम्पिंग फोर्स। ये जो एयर की वजह से जो डैम्पिंग फोर्स इसको लग रहा है, जो इसके मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, इसकी वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, इसका जो इन्फ्लुएंस है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा डोमिनेंट है। एंड सो मोशन क्या हो रहा है, तो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। सो क्या हो रहा है, तो मोशन हमारा कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। एंड बट एनर्जी क्या हो रहा है, तो घट रहा है, इट स्लोली लीक्स। जब एनर्जी हमारा घटेगा तो एक्चुअली में क्या होगा, व्हेन आवर एनर्जी रिड्यूसेस तो एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस। एक बार जब जाएगा तो इतना, मान लो कि जैसे कि ये इस पहला एम्पलीट्यूड ये रहा, दूसरे साइकिल में एम्पलीट्यूड घटेगा, तीसरे साइकिल में और घटेगा, तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जो है कंटिन्यूअस लीक जो हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है, क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली लीक हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी जो इस ब्लॉक को मिल रहा है, इसकी वजह से स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग पार्टिकल्स, ठीक है, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ये जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है इसका रैंडम थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द ब्लॉक, हमें हुआ क्या चीज, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक का, ठीक है, व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी है ये ट्रांसफर हुआ किसमें, ट्रांसफर टू द सराउंडिंग मीडियम, ट्रांसफर टू द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो इसकी वजह से हो रहा है कि जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है, सराउंडिंग मॉलिक्यूल का जो रैंडम थर्मल एनर्जी है, क्या है, रैंडम थर्मल एनर्जी वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द टग ऑफ वार सिचुएशंस हियर, ठीक है। डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस में टग ऑफ वार का ये सिचुएशन होता है। तो हमने ये भी देखा कि जो डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है, एफडी, ये कहीं ना कहीं क्या है, तो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। इट इज सम फंक्शंस ऑफ वेलोसिटी, एंड एक्चुअली द बुक विल डिस्क्राइब डैम्पिंग फोर्स एफडी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टाइम्स ऑफ बी, वेयर बी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है ब्लॉक के साइज पे और सराउंडिंग मीडियम के थिकनेस पे, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो हमने एक छोटी सी बात समझ ली, और इससे अगर हमसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि इन डैम्प्ड ऑक्सीलेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर स्मॉल डैम्पिंग, तो टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज करता है,
लेकिन टाइम पीरियड इसलिए कांस्टेंट होता है क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, ये डोमिनेट करता है मोशन को इन कंपैरिजन टू द डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स मोशन को उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है जितना कि रिस्टोरिंग फोर्स करता है। डैम्पिंग फोर्स की वजह से ही तो मेरा एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो ये करता तो जरूर है बट टाइम पीरियड पर उतना असर नहीं डालता है। तीसरा चीज, द डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू द एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो याद रखिएगा, एयर की वजह से जो डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, आपने देखा है कि जब द ब्लॉक मोशन में आता है, जब ब्लॉक के पास वेलोसिटी होती है, ठीक है, तभी जाकर के उसको हवाओं को हटाना होता है, हैज टू मूव द एयर आउट ऑफ द वे। जब ब्लॉक के पास वेलोसिटी होती है तभी इट हैज टू मूव द एयर आउट ऑफ द वे, इट हैज टू मूव द एयर आउट ऑफ वे, एयर आउट ऑफ इट्स वे, ठीक है, अपने रास्तों से उसको हटाना पड़ता है। दैट्स व्हाई द ड्रैग फोर्स पिक्चर में आता है, ड्रैग फोर्स पिक्चर में आता है। सो डैम्पिंग फोर्स इज ड्यू टू एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो कंफ्यूजन में लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स में दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, at which point is energy loss per unit time is maximum। तो आपने देखा है कि इस टाइम पे जो होता है एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम मैक्सिमम होता है। एनर्जी लॉस मतलब क्या चीज, तो डंपिंग पे सबसे ज्यादा आपको पता है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है, जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल ऑक्सीडेट कर रहा है, तो जब ये मीन पोजीशन पे होता है तो वेलोसिटी इधर हुई एंड दिस वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो ये वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होगा तो ड्रैग फोर्स की मैग्नीट्यूड इस पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये ड्रैग फोर्स अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम लीकेज होगा, उसी स्थान पे क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। सो एट विच पॉइंट इज द एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम मैक्सिमम। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशंस पे मोशन के दौरान जब होती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मीन पोजीशंस पे, और चूंकि ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है इसलिए मैक्सिमम एनर्जी लॉस कहां होता है, इस पॉइंट पे होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि एनर्जी लॉस जो होता है ऑक्सीलेशंस के दौरान वो कोई लीनियर लॉसेस नहीं है। एनर्जी लॉसेस क्या है, लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल लॉसेस हैं। एंड इट इज मैक्सिमम एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन। कुछ बेसिक चीजें इसको हम लोग क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी है तो वी शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। इफ डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल तो मोशन क्या होगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक होगा। जैसे हमने कहा है कि डैम्पिंग अगर स्मॉल होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स डोमिनेट कर जाता है, टग ऑफ वार में रिस्टोरिंग फोर्स डोमिनेट कर जाता है। हमने कहा ना कि जब हम बात करते हैं डैम्प्ड एसएचएम की तो दिमाग में पिक्चर होना चाहिए कि टग ऑफ वार चल रहा है। क्या चल रहा है, टग ऑफ वार चल रहा है। किसके किसके बीच चल रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स के बीच चल रहा है और ये डैम्पिंग फोर्स के बीच चल रहा है। और अगर डैम्पिंग स्मॉल है मतलब रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो क्या होगा कि ये इन्फ्लुएंस करेगा ऑक्सीलेशन को। तो इस केसेस में जब भी ऐसा होगा कि जब रिस्टोरिंग फोर्स मोशन को इन्फ्लुएंस करेगा तो जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, मोशन पीरियोडिक होगा, ठीक है। क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ऑक्सीलेशन तो हो रहा है तो ये अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक ऑक्सीलेशंस होगा। एनर्जी लॉस्ट इन डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस अपीयर एज, जो भी एनर्जी लॉस हो रहा है, जो भी एनर्जी कहां लॉस हो रहा है, तो एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द डैम्पिंग, मतलब अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स, उसके अगेंस्ट में ही हमारा सिस्टम काम कर रहा है तो वो एक्चुअली हीट एनर्जी के रूप में लॉस हो रहा है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेस ड्यू टू द डैम्पिंग, तो ये बात गलत है। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स ऑफ x, यानी तो जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके केस में क्या होता है तो mg इंटू थीटा होता है, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है तो डैम्पिंग फोर्स का फंक्शन तो नहीं है, तो डैम्पिंग की वजह से इसमें क्यों बदलाव आएगा। डैम्पिंग फोर्स इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड, डैम्पिंग फोर्स की वजह से क्या एम्पलीट्यूड घटता है, नहीं, डैम्पिंग फोर्स रिमूव्स द मैकेनिकल एनर्जी। ये तो बात तय है कि डैम्पिंग फोर्स क्योंकि हमारे सिस्टम पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, यानी तो हमारा सिस्टम जो है सो डैम्पिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस को कम, मतलब पार्टिकल पे उसका एनर्जी लीक हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई डैम्पिंग फोर्स हमारा सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी को घटा रहा है। सो द आंसर विल बी सी, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स अनचेंज होगा, ओनली एनर्जी गेट्स ड्रेन्ड। तो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने एनसीईआरटी के लाइन से ही कंक्लूड कर रखे हैं। तो व्हाई डू ऑक्सीलेशंस रिमेन्स पीरियोडिक फॉर ए स्मॉल डैम्पिंग, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है स्मॉल डैम्पिंग के केस में, तो ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि एनर्जी लॉस तो होता है, डैम्पिंग फोर्स इक्वल्स रिस्टोरिंग फोर्सेस। तो स्मॉल डैम्पिंग के केस में तो ऐसा होता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो मच ग्रेटर देन डैम्पिंग फोर्स हो जाता है, तो ये तो बात गलत हो गई। डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल एज कंपेयर टू रिस्टोरिंग फोर्स, तो यही होगा इसका आंसर। सो दिस इज द रीजन दैट द ऑक्सीलेशंस रिमेन्स पीरियोडिक फॉर स्मॉल डैम्पिंग, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल एज कंपेयर टू द रिस्टोरिंग फोर्स। सो हमने क्या सीखा कि डैम्पिंग डज नॉट स्टॉप द ऑक्सीलेशन इंस्टेंटली, ठीक है। मेरा ऑक्सीलेशन तो अचानक से रोकता नहीं है डैम्पिंग की वजह से, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारा बस स्लोली स्टील द एनर्जी, ये एनर्जी चुराता है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है उसको क्या होता है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इट श्रिंकिंग द एम्पलीट्यूड मेरा घटता जाता है while leaving the time period nearly unchanged. The damping force जो होता है, the damping force depends on the nature of the surrounding medium.
ठीक है। जो हमने कहा जो डैम्पिंग फोर्स था एफ डी, वो किस पे डिपेंड करता है, तो सराउंडिंग मीडियम के नेचर पे हो जाता है। इफ द ब्लॉक इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डैम्पिंग फोर्स विल बी मच ग्रेटर। ऑब्वियसली गैसेस में कम होगा डैम्पिंग, एंड द डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी विल बी मच फास्टर। तो ये तो चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि जो एनर्जी है स्प्रिंग, जैसे मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अगर उसके सराउंडिंग में वाटर होता तो ऑब्वियस है कि वाटर का जो डैम्पिंग है ज्यादा होगा, क्योंकि उस केसेस में एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। सो डैम्पिंग फोर्स इज जनरली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉब। ये तो हम लोग ने अभी देख लिया कि बॉब जो होता है हमारा, जो पेंडुलम के दौरान जो हमारा बॉब होता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, उसको आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स को हटाने होते हैं। तो हटाने होते हैं तो वो तभी हटाने होते हैं जब इसके पास, बॉब के पास वेलोसिटी होती है। इसीलिए ये कहता है कि जो डैम्पिंग फोर्स है इज जनरली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉब। बॉब के पास जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बॉब मूव करेगा उतनी ही जल्दी उसको वो पार्टिकल्स हटानी पड़ेगी, और अगर हटानी पड़ेगी तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसके रिस्पॉन्स में जो है, सो न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे अपोजिट डायरेक्शन में डैम्पिंग फोर्स एक्ट करेगा। सो दिस इज द डैम्पिंग फोर्स, और ये हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रोक्स लॉ में, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। एंड इट एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो डैम्पिंग फोर्स है, इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको लगेगा कि मान लो कि डैम्पिंग फोर्स इस वेलोसिटी इधर थी, तो डैम्पिंग फोर्स आपने इधर लगा दिया, इधर लगा दिया आपने डैम्पिंग फोर्स को इधर लगाया, दिस इज द डैम्पिंग फोर्स एफ डी। लेकिन सपोज करो कि सिनारियो अब ये है कि ये जो बॉब था, अब ये बॉब इधर है और इसका मोशन कुछ इधर की ओर है, ठीक है, इसका मोशन क्या है, तो इसका मोशन कुछ इधर की ओर है, वेलोसिटी वी इधर है। इस केसेस में यहाँ सराउंडिंग जो पार्टिकल है वो यहाँ है, अब ये बॉब इस पार्टिकल को हटाएगा तो ये पार्टिकल इस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो एफ डी इधर। तो क्या आप देख रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है डैम्पिंग फोर्स, इट इज एक्टिंग ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, डैम्पिंग फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एंड सो इफ द डैम्पिंग फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ डी, देन एफ डी इज इक्वल टू व्हाट, एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स ऑफ velocity of the bob. This is the equation. So इस इक्वेशन से आप क्या समझ पा रहे हो कि b जो है हमारा, b is some positive constant. b क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जो डिपेंड्स किस पे करता है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। b क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्या है ये, पॉजिटिव कांस्टेंट है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम। मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स है या वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो सराउंडिंग पार्टिकल्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। और कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है, विस्कोसिटी होता है, तो विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है मीडियम की विस्कोसिटी क्या है, और साथ में साइज एंड द शेप ऑफ द ब्लॉक। मतलब ये जो ब्लॉक है या ये जो बॉब है, अगर ये बड़ा बॉब होगा तो चीजें बदल जाएगी, तो वो उस पर डिपेंड करता है। सो बी इज नॉट जस्ट द फंक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द साइज एंड द शेप ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो ये रहा आपका डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। अब यहाँ एक चीज समझेंगे कि when the mass m is attached to the spring, ठीक है, and released, the spring will elongate a little and the mass will settle at some height, and this position is shown by O, and it is the equilibrium position of the mass। मतलब ये आपका जैसे ये सिस्टम है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जब आपने इसको रिलीज किया तो इसका वेट काम कर रहा होगा, इस वेट की वजह से जो mg वेट नीचे लग रहा होगा, तो जो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा ये मान लो x नॉट लेंथ ये खींच गया होगा, तभी जाकर के ये एक स्टेबल पोजीशंस पे, इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे है, एंड mg इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x नॉट आप कह सकते हो, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या है ये, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। सो यहाँ क्या कह रहा है कि व्हेन द मास m इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग, ठीक है, एंड रिलीज द स्प्रिंग विल इलोंगेट ए लिटिल, ठीक है, स्प्रिंग थोड़ा इलोंगेट होगा, एंड द मास विल सेटल एट सम हाइट। एक नॉर्मल सी चीज है, आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग के साथ आपने मास लगाया तो क्या लगता है, अगर नेचुरल लेंथ L0 होगा और ये मास की वजह से, तो स्प्रिंग थोड़ा खींचेगा, तब जाकर के इक्विलिब्रियम को अटैच मतलब अटेंड करेगा, थोड़ा खींच गया और मास यहाँ पे m आ गया, अब इसका लेंथ हो गया L0 प्लस x0। तो ये जो पोजीशन है वो क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। नाउ इफ द मास इज पुल्ड डाउन एंड और पुश्ड अप ए लिटिल, अब इस पोजीशन से अगर हम इसको नीचे की ओर पुल करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द स्प्रिंग इज दिस। तो जब हम इसको नीचे की ओर पुल करेंगे तो स्प्रिंग फर्दर खींचेगा ये लोग अपने मतलब इक्विलिब्रियम अवस्था से, तो इसकी वजह से रिस्टोरिंग, मान लो कि इसकी वजह से अब हमने इसको फर्दर खींच दिया, सपोज करो कि हमने इसको खींचा यहाँ पे, ये अब देखो यहाँ से, तो इसमें जो इलोंगेशन है वो मान लो मैंने x लेंथ का फर्दर इलोंगेशन कर दिया, तो अब क्या होगा कि जो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड काम करेगा इस डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, Fs इज इक्वल टू माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ x। सो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच एक्ट द स्प्रिंग इज पुल्ड डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द स्प्रिंग इज दिस, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ऑफ द मास फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अभी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था वो तो हमारा ये था, और ये जो x है वो क्या, ये है, x is the displacement of the mass from the equilibrium positions. So thus the total force जो एक्टिंग होगा इसमें क्या होगा, एक तो मेरा स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर की ओर काम कर रहा है सो, और साथ में जो चूंकि इसकी वेलोसिटी ऊपर है तो डैम्पिंग फोर्स जो हमारा काम करेगा माइनस बी टाइम्स ऑफ v नीचे की ओर।
ठीक है। तो इस पे दो फोर्सेस अब हमारे एक्ट कर रहे हैं, इस पे हमारे ब्लॉक पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सजेस्ट इज दैट कि हमारे ब्लॉक पे जो है वो दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक फोर्सेस क्या काम कर रहा है, तो एक फोर्सेस जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स अभी इक्विलिब्रियम पोजीशंस में है, जब डिस्टर्ब होगा तो ऊपर की ओर जो है सो kx काम करेगा, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स, और नीचे की तरफ जो है सो हमारा ड्रैग फोर्स काम करेगा। तो जो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है, जो टोटल जो फोर्स होगा इस पे काम करेगा वो क्या होगा, तो माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ x और माइनस ऑफ यहाँ पे, तो जो वेलोसिटी था हमने लिखा है कि माइनस b टाइम्स ऑफ v, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, माइनस ऑफ b इंटू v, दिस इज द नेट फोर्स विच विल एक्ट ऑन दिस ब्लॉक। ठीक है, दिस इज द नेट फोर्स विच विल एक्ट ऑन दिस ब्लॉक। तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स काम किया, ठीक है, F बराबर माइनस ऑफ kx और माइनस ऑफ bb, ये दो फोर्सेस पिक्चर में आए, इन दो फोर्सेस ने काम किया। ठीक है, तो अब देखो क्या चीज, इफ at इज द एक्सेलरेशन ऑफ मास एट टाइम t, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो at है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से, क्योंकि अभी जो हम डिराइव कर रहे हैं ना, एक्चुअली व्हाट वी आर डिराइविंग इज वी आर डिराइविंग द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, जो कि इस तरह का आएगा। तो हम लोगों ने फोर्स प्रेडिक्ट कर लिया, दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये हो गया मेरा रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये हो गया मेरा रिस्टोरिंग फोर्स, और ये हो गया मेरा डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, डैम्पिंग फोर्स। अब अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर हम मान लेते हैं at है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि मास अगर m है तो हम m इंटू at एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ x माइनस b इंटू v। तो अब अगर हम at जो होता है एक्सेलरेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, d2x बाई dt स्क्वायर। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है dx बाई dt। ठीक है, तो जब डिफरेंशियली हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m इंटू d2x बाई dt स्क्वायर और प्लस k में प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि b इंटू वी है, तो v का जो ब्लॉक की जो वेलोसिटी है किसी मूवमेंट पे किस पे डिस्क्राइब होगी, तो डी एक्स बाई डी टी से दिस, और प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ये क्या है, ये है फंडामेंटल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का ये फंडामेंटल इक्वेशन है जो बुक ने आपको डिराइव किया है। क्या किया, ये जो बुक ने डिराइव किया है, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। क्या ये फंडामेंटल इक्वेशन है किसका, तो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशंस का ये फंडामेंटल इक्वेशंस है। और जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। इसको अगर आप गौर से इस इक्वेशंस को देखो तो क्या आ रहा है कि ये जो इक्वेशंस है, सो ये क्या है, वी सी द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है x का, एंड यू आर सीइंग द डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट इंटरेक्टिंग। इस पूरे इक्वेशन से हमको क्या लग रहा है कि डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट्स जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हर इंस्टेंट पे अगर देखा जाए तो थ्री थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। अगर आप अपना केस को याद करो तो आपका केस क्या था कि ये ब्लॉक था, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे ये मास था m, इसका k था ये, और साथ में यहाँ पे पार्टिकल था, जिसकी वजह से जो है सो डैम्पिंग फोर्स जो fd जो था वो माइनस ऑफ b टाइम्स ऑफ b, मतलब ये डैम्पिंग फोर्स ऐड कर रहा था। तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ देखो स्प्रिंग इज पुलिंग ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स तो स्प्रिंग की वजह से है, तो स्प्रिंग ब्लॉक को पुल कर रहा है, दैट्स व्हाई k इंटू x, जो ये जो कंपोनेंट है k इंटू x, दिस इज हेयर इन पिक्चर। द मीडियम इज रेजिस्टिंग द मोशन, तो ये जो b इंटू डी एक्स बाई डी टी है वो क्या है, एक्चुअली जो मीडियम है, ये जो सराउंडिंग पार्टिकल जो मोशन को रेजिस्ट कर रहा है ये है, एंड जो मास जो है, तो मास इज रेजिस्टिंग द एक्सेलरेशन एंड दैट्स व्हाई दिस टर्म इज हेयर। So we call it a competing effect। एक तरह का कंपटीशन चल रहा है इस मोशन में, जहां पे कि डैम्प्ड ऑक्सीलेशन हो रहा है, यहाँ एक कंपटीशन है किस चीज का, स्प्रिंग वांट टू कंटिन्यू द मोशन, स्प्रिंग को चाहिए कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंटिन्यू रखे, ठीक है, डैम्पिंग वांट्स मोशन टू स्टॉप्स, और ये जो आपका सराउंडिंग पार्टिकल का जो अपोजिट फोर्स है, इट वांट्स मोशन टू स्टॉप। और ये जो मास है ना, इसके पास तो इनर्शिया है, सो मास वांट्स नो सडन चेंजेस, वो नहीं चाहता, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में बना रहना चाहेगा, इसके पास इनर्शिया का अपना इफेक्ट है। तो दीज थ्री कैन नॉट ऑल विन फुली, तो जब ये तीनों एक साथ तो जीत नहीं सकते हैं, एंड सो मोशंस बिकम डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस। क्या होता है, इसीलिए इन सब का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ही ये मोशन क्या कहलाता है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस कहलाता है। तो ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशंस। और सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज फाउंड, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकला, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है सो उसने निकाला है ये, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 14.23 डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द ब्लॉक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। सो ये खास ध्यान रखिए इस बात का कि ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये तभी वैलिड है जब आपका डैम्पिंग फोर्स FD इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ b टाइम्स ऑफ v, मतलब प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, ये नहीं कि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल हो जाए, नहीं, ये तभी मतलब वैलिड है ये सॉल्यूशन व्हेन द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, एंड द सॉल्यूशन इज फाउंड इन दिस फॉर्म। यहां देखेंगे क्या चीज कि इस सॉल्यूशन को गौर से देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ जो ये cos ओमेगा प्राइम t प्लस फाई है, ये कह रहा है कि ऑक्सीलेशन हो रहा है,
ये जो पार्ट है ये एक्चुअली में स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एग्जिस्टेंस में आया है। और ई ए इंटू ई के पावर बी इंटू टी, अगर इस पूरे को हम अगर एम्पलीट्यूड मान ले तो हम क्या देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो है सो मेरा एक्सपोनेंशियली घट रहा है। सो दिस इज हाउ द सॉल्यूशंस कम्स इनटू द पिक्चर। जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, और इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, कॉम्प्लेक्स रूट्स चाहिए और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्बिनेशंस लगाना पड़ेगा। तो ये एक हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स की बात है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हाउ दिस हैज बीन कैलकुलेटेड हियर, वी जस्ट डाइव इनटू द फिजिक्स बिहाइंड दिस इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां अगर आप गौर से देखो तो दो मोशन कंबाइंड हो रहा है, टू मोशन कंबाइंड इन वन इक्वेशन। इस इक्वेशन को गौर से देखो। जनरली जब हम इक्वेशन निकालते थे तो एक्सटी, जब एंडैम्प्ड सिचुएशन था तो एक्सटी इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आता था। यहाँ कॉस ऑफ ओमेगा प्राइम प्लस टी प्लस फाई, ये तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीलेशन हो रहा है, बट यहाँ एम्पलीट्यूड यहाँ कांस्टेंट होता था, बट हियर एम्पलीट्यूड इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। यू कैन सी हियर द टाइम इज सिटिंग इनसाइड दिस, सो एम्पलीट्यूड इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। सो इन दिस केस ये जो इक्वेशन है वो क्या है, दो मोशन का एक कंबाइंड इक्वेशन है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दो पार्ट है। तो ये सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया, दिस इज नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन। दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीलेशन, ठीक है, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीलेशन क्योंकि ये कॉस पार्ट है, एंड दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द डीके ऑफ एम्पलीट्यूड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डीके को बता रहा है। एम्पलीट्यूड जो घट रहा है इसके डीके को ये डिस्क्राइब कर रहा है। सो द सिस्टम अभी भी ऑक्सीलेट कर रहा है, डैम्पिंग होने के बावजूद भी सिस्टम ऑक्सीलेट कर रहा है, बट इट्स एम्पलीट्यूड इज सिंकिंग कंटिन्यूअसली। एम्पलीट्यूड कैसे सिंक कर रहा है कि अब जो एम्पलीट्यूड हो गया वो दिस इज ए इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ बी बाई ट्वाइस ऑफ एम इंटू टी। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड यू कैन सी दैट द एम्पलीट्यूड इज डिकेइंग, एम्पलीट्यूड इज श्रिंकिंग कंटिन्यूअसली। और ये क्यों श्रिंक कर रहा है, क्योंकि जो आपका डैम्पिंग फोर्स एफडी है ये हमारे सिस्टम से एनर्जी छुड़ा रहा है, एनर्जी लीक हो रहा है, और ये एनर्जी लीकेज की वजह से जो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशंस है वो लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमने ये सॉल्यूशन निकाला, इस सॉल्यूशन में जो ओमेगा प्राइम है, सो वी हैव ए न्यू फ्रीक्वेंसी हियर। ठीक है, पहले जो ओमेगा था वो रूट अंडर ऑफ के बाई एम आता था जब हमारा डैम्पिंग नहीं था। नो डैम्पिंग के केस में हमारा ये केस था, जब हमारा डैम्पिंग नहीं था। लेकिन अब जब डैम्पिंग एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको एक अलग से टर्म लाना पड़ रहा है, दिस इज बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, सो ये आ रहा है। एंड दिस टेल्स एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो पता चल रहा है यहाँ से एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस टेल्स दैट द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एंड दिस एक्सपोनेंट इज द रेट एट विच द एम्पलीट्यूड डाइज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड लिनियरली डाई आउट नहीं हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डाई आउट हो रहा है। ये चीज याद रखिएगा, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इज नॉट डाइंग आउट लिनियरली, इट इज डाइंग आउट एक्सपोनेंशियली। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डाई आउट हो रहा है। और ये जो आपका इक्वेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि वैक्यूम में तो फ्रीक्वेंसी रूट अंडर k बाय m आता था जब डैम्पिंग नहीं था। ठीक है, हाउएवर हियर द डैम्पिंग फोर्स fd इज इंट्रोड्यूस। यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स है इसका पैरामीटर यहाँ घुस गया है बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर, जहां बी क्या है, तो बी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट है। और आपको पता है कि डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है किस पे, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, किस पे डिपेंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, और प्लस जो शेप एंड साइज ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ ब्लॉक पे भी डिपेंड करता है। तो ये डैम्पिंग फोर्स जो है सो मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि B इज द डैम्पिंग कांस्टेंट व्हिच डिस्क्राइब्स कि हाउ थिक द फ्लूइड इज। B क्या होता है, ये डैम्पिंग कांस्टेंट है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या कि सराउंडिंग मीडियम कितना थिक है, हाउ थिक द मीडियम इज। सो B इज द डैम्पिंग कांस्टेंट व्हिच डिस्क्राइब्स हाउ थिक द फ्लूइड इज। तो यहाँ जो B स्क्वायर बाई जो ये 4m स्क्वायर है, ये एक्चुअली में क्या है, इट इज अ पेनल्टी दैट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज अ पेनल्टी है, डैम्पिंग की वजह से ये पेनल्टी घुसा है जो फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा प्राइम है इज लोअर देन द अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, सो द ऑक्सीलेशन एक्चुअली स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ स्लोअर देन इट वुड विदाउट फ्रिक्शन। तो आपने क्या देखा कि एक सब बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने डिराइव किया कि शुरू में फ्रीक्वेंसी जब अनडैम्प्ड केस था तो ये था, और अब जब आपका आया डैम्पिंग घुस गया अंदर तो आपकी फ्रीक्वेंसी ये आ गई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ये ओमेगा प्राइम है इससे ज्यादा बड़ा था ओमेगा, तो इससे क्या हुआ है कि फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा प्राइम है वो लोअर देन द अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है, ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, ये है अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, एंड सो ऑक्सीलेशन एक्चुअली स्विंग्स बैक एंड फोर्थ स्लोअर। इसलिए क्या होगा, तो ऑक्सीलेशन विल
बी स्लोअर, ठीक है, स्लोअर होगा। अगर देखा जाए तो ऑक्सीलेशन विल बी स्लोअर देन इट वुड बी विदाउट फ्रिक्शन, स्लोअर देन इट वुड बी विदाउट फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन का जो ऑक्सीलेशन होगा उससे ये ऑक्सीलेशन स्लोअर होगा जो है सो। एंड इन ट्रू एसएचएम द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द एग्जैक्ट स्पॉट एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन इस केसेस में आप देखोगे क्या चीज कि यहाँ जो हमारा टाइम पीरियड होगा ये क्या है, तो टी बराबर यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा प्राइम होगा, ठीक है, टी पाई बाई ओमेगा प्राइम होगा। तो इसको आप ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ हमारा जो एक्सप्लेनेशन है एज पर द बुक्स इज दैट कि आपको ये फ्रीक्वेंसी आया एंड इन दिस फंक्शन द कोसाइन फंक्शन हैज ए पीरियड ऑफ 2 पाई बाई ओमेगा प्राइम, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट आपने निकाला, ठीक है, ये जो आपने सॉल्यूशन निकाला एक्स टी इक्वल टू ए ई के पावर माइनस बी इंटू टी बाई ट्वाइस ऑफ एम कॉस ओमेगा प्राइम इंटू टी प्लस 5, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो कोसाइन फंक्शन हैज ए पीरियड ऑफ दिस बट द फंक्शन एक्स टी इज नॉट स्ट्रिक्टली पीरियोडिक। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। आप इसको कॉस ओमेगा प्राइम प्लस टी प्लस 5 तो देख रहे हो, बट ये स्ट्रिक्टली पीरियोडिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड जो है सो टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिके कर रहा है। ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है इज कॉन्स्टेंटली श्रिंकिंग द डिस्प्लेसमेंट। ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है जो आप यहाँ देख रहे हो ना, दिस इज ए इंटू ई के पावर माइनस बी इंटू टी बाई ट्वाइस ऑफ एम, दिस इज कॉन्टिन्यूसली श्रिंकिंग द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कर रहा है एक्चुअली, कॉन्स्टेंटली श्रिंकिंग द डिस्प्लेसमेंट, श्रिंकिंग द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है, तो घट रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो श्रिंक कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, it is continuously shrinking the displacement. So but the function xt is not strictly periodic, but because of factor this which decreases continuously with the time. However, if the decrease is small in one time period, ठीक है, the motion is represented is approximately periodic. लेकिन अगर डैम्पिंग का इन्फ्लुएंस कम है, ठीक है, यदि डैम्पिंग स्मॉलर है, तो आप ये कह सकते हो कैचेस की जो ये जो मोशन है वो अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक आप इसको कह सकते हो। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि जैसे एक टाइम पीरियड हुआ, ठीक है, यू कैन सी हियर इज दैट वन टाइम पीरियड, एंड जो असर है इसके एम्पलीट्यूड में घटने पे अगर वो कम है तो इसमें आप इसको पीरियोडिक कह सकते हो, सेम स्टेट में पार्टिकल है। फिर इस केसेस में फिर तो हर साइकिल के लिए आप इसको अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक मान सकते हो। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर एंड वी कैन रिगार्ड इट एज ए कोसाइन फंक्शन। ये जो है एक्चुअली में क्या है, आप देखो तो ये कोसाइन फंक्शन है, वी कैन रिगार्ड इट एज एन कोसाइन फंक्शन हुज एम्पलीट्यूड जो है विच इज दिस इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। क्योंकि अगर आप एम्पलीट्यूड का प्लॉट लोगे हर टाइम पे, ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड का प्लॉट है वो कैसा आएगा, इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, इस तरह का ये एम्पलीट्यूड का प्लॉट होगा। एंड दिस इज फॉलोइंग सम द इक्वेशन ऑफ एक्जेक्टली द इक्वेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ बी टी बाई ट्वाइस ऑफ एम ए। सो दिस इज, और इसी तरह से आप यहाँ इसका जो यहाँ जो एम्पलीट्यूड है अगर इसको आप प्लॉट करो तो इट इज सिंपली लाइक दिस, ठीक है। सो व्हाई इज दिस इक्वेशंस डिफाइनिंग कंडीशंस फॉर स्मॉल डैम्पिंग। कि स्मॉल डैम्पिंग के केस के समझ लो कि अगर मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मेरा डैम्प ऑक्सीलेशन का निकल के आया है, तो फॉर अ सिस्टम टू ऑक्सीलेट ऑल वैल्यू इनसाइड द स्क्वायर रूट मस्ट बी पॉजिटिव। ये सबको पता है, अगर सिस्टम को ऑक्सीलेट होना होगा तो ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, नहीं तो क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो ऑक्सीलेशन जो है सो होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब आप ये बेटर ढंग से जानते हो कि k बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है, इसको समझ लो जरा बेहतर ढंग से। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड होना है तो आप कहीं ना कहीं ये लिख सकते हो कि k बाई एम शुड बी मच ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर, और यहाँ से अगर देखो तो k शुड बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई 4m, and so finally b should be lesser equal much lesser than root under of twice of km, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, रूट अंडर ट्वाइस ऑफ km। सो वी कैन एक्चुअली अप्रोक्सीमेट इट एज b शुड बी लेस देन रूट अंडर km, क्योंकि जो सिंबल जो है कि दिस सिंबल डज नॉट मीन्स स्मॉलर, ये जो सिंबल है आप देख रहे हैं ये स्मॉलर नहीं है, ये कई फोल्ड मतलब कि 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर मतलब 10 या 100 टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है कि b शुड बी 100 टाइम्स और 200 टाइम्स स्मॉलर देन रूट अंडर km। दैट्स व्हाई वी कैन इग्नोर द 2 एंड दिस बिकम द केस फॉर डिफाइनिंग द कंडीशन ऑफ स्मॉल डैम्पिंग। तो हमारा स्मॉल डैम्पिंग का केस क्या है कि b बाय रूट अंडर km शुड बी मच लेसर देन 1, तो हम कहेंगे कि स्मॉल डैम्पिंग हो रहा है। और इस केसेस में जो ओमेगा प्राइम की हमारी वैल्यू होगी, जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी, वो नेचुरल जो हमारा अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन के केस में हुआ करता था वो हमारा पिक्चर में आ जाएगा जो है सो, ठीक है।
तो दिस इज द कंडीशन फॉर डिफाइनिंग द स्मॉल डैम्पिंग, दैट व्हाट कि b शुड बी क्या होगा, b बाय रूट अंडर जो km है, ठीक है, इट शुड मच स्मॉलर देन 1। तो ये क्या डिफाइन करेगा, स्मॉल डैम्पिंग को डिफाइन करेगा। अगर b बाय रूट अंडर km अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाता है तो ये क्रिटिकल डैम्पिंग का केस होगा। क्या होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग का केस होगा। तो क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में क्या होगा, सिस्टम रिस्टोर्ड एज फास्ट एज द पॉसिबल। तो जैसे कि कार का शॉकर वगैरह है, तो आप क्या मतलब जर्किन में आप उसके मतलब जो ऑक्सीलेशन होता है, आप क्या चाहेंगे कि एक बार जैसे ऑक्सीलेशन हुआ तो बहुत जल्दी वो जो है सो अपने ओरिजिनल सिचुएशंस पे आ जाए। वी टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड डिके, ठीक है। अब क्या देख रहे हो कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है उस पर डिके रेट क्या है, तो b बाई ट्वाइस ऑफ m इज द डिके रेट ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो अगर आप देखें तो जो एम्पलीट्यूड पूरा जो इक्वेशंस था हमारा वो क्या था, दिस वाज द होल इक्वेशन a e टू द पावर माइनस b बाई ट्वाइस ऑफ m इनटू t cos ओमेगा प्राइम इनटू t प्लस 5। सो मेरा जो एम्पलीट्यूड का ये था, तो डिके रेट क्या है, डिके रेट इज b बाई ट्वाइस ऑफ m, दिस इज द डिके रेट, ठीक है, b बाई ट्वाइस ऑफ m इज द डिके रेट। तो व्हाट हैपेंस इफ b इंक्रीजेस, b इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस बिकम स्ट्रॉन्गर। मैंने ऐसे मीडियम डाल दिए जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, तो सिस्टम एनर्जी को फास्टली लूज करने लगेगा और इसलिए एक्सपोनेंट बिकम लार्जर और सो एम्पलीट्यूड काफी तेजी से डिक्रीज करेगा। और ये कब होगा कि जब हम एयर में करेंगे तो आप देखते हैं क्या चीज कि बी कम होगा तो वो स्लोली डिके करेगा एम्पलीट्यूड, और जब वाटर डाल लेंगे तो इट स्टॉप्स क्विकली। सो सेम सिस्टम है, लेकिन अगर मैंने डैम्पिंग बी को चेंज कर दिया तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीलेशन है वो क्विकली स्टॉप हो जाता है। अगर हम एम को इंक्रीज करते हैं मतलब ऑब्जेक्ट बिकम हार्डर और टू स्लो डाउन। अगर मेरा एम ज्यादा बड़ा हो गया, जैसे मान लो ये पेंडुलम बॉब के ऐसे इमेजिन करो कि जैसे ये बॉब है, ठीक है, अब ये बॉब को हमने बड़ा कर दिया, तो जब बॉब बड़ा हो गया तो इसका इनर्शिया ज्यादा है, तो इट इज हार्डर टू स्लो डाउन, इसको स्लो डाउन करना बहुत मुश्किल है। तो अगर सेम रेजिस्टेंस है, एक छोटा बॉब है एक बड़ा बॉब है, तो सेम रेजिस्टेंस हैज लेस इफेक्ट होगा, हार्डर वाले बड़े वाले बॉब पे लेस इफेक्ट होगा, सो एक्सपोनेंट बिकम स्मॉलर, ठीक है। इन दैट केस ये जो एक्सपोनेंट होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये स्मॉलर हो जाएगा एंड सो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस स्लोली। तो जैसे कि मतलब लाइट बॉल है, लाइट बॉब जब होगा तो क्या होगा, ये स्टॉप क्विकली, एंड हैवी बॉल होगा तो कीप्स मूविंग। सेम रेजिस्टेंस है, डिफरेंट मासेस हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि द सिस्टम डज नॉट केयर अबाउट बी और एम अलोन। ये जो सिस्टम है, जो ऑक्सीलेशन है, इसमें बी और एम अकेला मतलब केयर नहीं करता है, इट ओनली केयर अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग द रेजिस्टेंस इज कंपेयर टू द इनर्शिया। तो अब याद रखिएगा कि इन डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड डज नॉट डिक्रीजेस लिनियरली, it decreases exponentially, and you can see here that the amplitude is decreasing exponentially जो है। सो क्या देख रहे हैं आप लोग, and you have to derive कि amplitude का हाफ लाइफ बताओ, हाफ लाइफ ऑफ द ऑक्सीलेशन बताओ। मतलब ये कह रहा है derive the derivation of the amplitude हाफ लाइफ इन डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। तो एम्पलीट्यूड का हाफ लाइफ कब होगा, जब वो टाइम बताना है इसमें, द हाफ लाइफ मतलब क्या चाहिए, द टाइम t, जबकि वो टाइम बताओ जब एम्पलीट्यूड जो है 80 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो a नॉट बाई 2 हो जाती है। This is what the half life, amplitude half life means. What is amplitude half life? The time at which the amplitude gets half of the initial amplitude. This is the amplitude half life. तो इसका जब वैल्यू निकालना होगा, आपको प्रॉब्लम्स में पूछे जाते हैं कई बार, तो आप सिंपली इस इक्वेशन में देखो तो a by 2 जब आप डालोगे तो इट विल व्हाट, दिस इज द 80 की वैल्यू है, तो a by 2 हो जाता है t टाइम के बाद, और इनिशियली a नॉट by 2, इनिशियली a नॉट एम्पलीट्यूड था, and e to the power minus of b by twice of m into t. So you can simply write it as 1 by 2 is equal to e to the power minus b by twice of m into t. So यहाँ पे जब मैं log लूंगा, ln लूंगा, तो ये क्या होगा, ln 1 by 2 is equal to ln, और ये e to the power minus b by twice of m into t, तो ये क्या हो जाएगा, minus of ln 2 is equal to minus of यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b into b, तो ये जो आपका e के पावर है, तो माइनस यहाँ पे b, सॉरी ट्वाइस ऑफ m इंटू टी था, t नीचे नहीं आएगा, t यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा है भाई, डोंट कंफ्यूज इट है, तो माइनस b इंटू टी बाई ट्वाइस ऑफ m, तो यहाँ से ये कट गया, तो फाइनली जो टाइम मैंने निकाला वो क्या निकला, ट्वाइस ऑफ m ln 2 बाई b। सो दिस इज द हाफ लाइफ, एम्पलीट्यूड हाफ लाइफ, ठीक है। एम्पलीट्यूड इतने समय के बाद आधा हो जा रहा है, ठीक है, t इक्वल टू दिस टाइम के बाद एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है, दिस इज ट्वाइस ऑफ m ln 2 बाई b। और जो ln 2 की वैल्यू होती है, वी बेटर नो कि ln 2 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.693 होती है। सो वी कैन सिंपली राइट इट एज कि जो t एम्पलीट्यूड का जो हाफ लाइफ का हम लोग t 1/2 भी लिखते हैं, सो दिस इज t इक्वल टू t 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इंटू 0.693 बाई द डैम्पिंग कांस्टेंट b, ठीक है। सो ये चीज आप याद रखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज नथिंग बट यहाँ से 1.386 m बाई यहाँ पे b आ जाएगा। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड हाफ लाइफ जो है, सो क्या है ये, एम्पलीट्यूड हाफ लाइफ है डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस में। तो हमने क्या देखा कि बिकॉज द डिके इज एक्सपोनेंशियल, सो आफ्टर t इक्वल टू t बाई 2, क्योंकि डिके क्या है,
हमने क्या देखा कि जो डीके हो रहा है वो डीके क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल हो रहा है, एक्सपोनेंशियल हो रहा है। और एक्सपोनेंशियल होने की वजह से क्या हो रहा है कि t 1/2 टाइम में जो हमारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू है वो a/2 हो रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल कॉल द हाफ लाइफ, द एम्पलीट्यूड बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड है जो आपने निकाला है कि वो क्या हो रहा है, तो हर हाफ लाइफ के बाद जो है एम्पलीट्यूड बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। सो अगर मान लो इनिशियल एम्पलीट्यूड स्टार्ट हुआ मतलब अगर मान लो बॉब ने स्टार्ट किया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो ऑक्सीलेशन था वो ए नोट एम्पलीट्यूड था, तो हर मतलब t इक्वल टू t 1/2 टाइम के बाद एम्पलीट्यूड a0/2 हो जाएगा। सेकंड हाफ लाइफ के बाद a0/4 हो जाएगा। थर्ड हाफ लाइफ मतलब पहले यहाँ से यहाँ ऑक्सीलेट कर रहा था, मतलब अगर इसको लिनियरली प्लॉट कर रहे हैं तो पहले एम्पलीट्यूड ये था, बाद में एम्पलीट्यूड इसका आधा हो जाएगा, मतलब a0/2, तो a0/2 आधा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। फिर उसके बाद मतलब ये मान लो ये है आधा, फिर ऐसे आधा ऐसे घटते घटते मीन पोजीशन पे पार्टिकल आ जाता है। सो इंस्टेड ऑफ सब्सट्रैक्टिंग इट कीप्स डिवाइडिंग बाय 2 रिपीटेडली। तो यदि ए नोड इनिशियल एम्पलीट्यूड है, ये बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई और नीट में तो खास तौर पे सवाल चिपकाए जाते हैं कि ए नोड अगर इनिशियल एम्पलीट्यूड है और ए अगर एम्पलीट्यूड है आफ्टर टी टाइम के बाद, तो एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटरवल के बाद, ठीक है, क्या चीज, आफ्टर एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटरवल ऑफ पास्ट, ठीक है, और यदि t 1/2 इज द टाइम टेकन टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड हाफ, मतलब ये है, तो कह रहा है क्या चीज कि n नंबर ऑफ हाफ इंटरवल के पास होने के बाद एम्पलीट्यूड क्या होगा, मतलब t इक्वल टू n इंटू टी के पावर 1/2 के बाद क्या होगा, तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ हाल्विंग्स एंड टोटल टाइम्स फॉर द हाल्विंग। इसके बाद ये सिचुएशन जो है सो बनेगा, और उस केसेस में, इस केसेस में जो एम्पलीट्यूड होगा, मतलब t इक्वल टू इतना टाइम के बाद जो एम्पलीट्यूड होगा वो a0 इंटू 1/2 टू द पावर n होगा। ये चीज आप याद रखेंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगला सवाल भी इसी तरह से चिपकेगा आपके पास। एक चीज जो समझ में रखना कि स्टूडेंट हमेशा सोचते हैं कि आफ्टर 3 इंटरवल अगर एम्पलीट्यूड उनसे पूछ दिया कि 3 हाफ इंटरवल के बाद एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो वो क्या करेंगे, इनिशियल एम्पलीट्यूड में से ये 3 इंटू a0/2 घटा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू राइट कि 3 हाफ इंटरवल के बाद जो एम्पलीट्यूड होगा दिस इज a0, जो इनिशियल एम्पलीट्यूड था, सो और 3 हाफ है मतलब 1/2 टू द पावर q एंड दिस इज a0/8। सो ये चीजें हमें याद रखने की जरूरत है। अब जो हमारा कंसेप्ट यहाँ था कि हमने इसको देख लिया, और ए डैम्प्ड ऑक्सीलेटर इज अप्रोक्सीमेटली पीरियोडिक विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, जैसा कि आपने देखा, ऑफ ऑक्सीलेशन विद ग्रेटर डैम्पिंग ऑक्सीलेटर डाई आउट फास्ट। ठीक है, जब डंपिंग ज्यादा होगा तो ऑक्सीलेशन जल्दी फास्टली डाई आउट होता है। नाउ एक एनर्जी का पर्सपेक्टिव जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनर्जी, कि जब हमारा आइडियल जो था, जब सिंपल हार्मोनिक मोशंस हो रहा था, तो जो टोटल एनर्जी था व्हाट वाज 1/2 k into a²। सो एनर्जी वाज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब जो प्लॉट हमने देखा था कि एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट था। अब काइनेटिक एनर्जी ऐसा था, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा था, बट जो मेरा टोटल एनर्जी था इट इज जस्ट फॉलोइंग क्या चाहिए 1/2 of k into a²। लेकिन इस केसेस में देखो तो एम्पलीट्यूड ही हमारा आ रहा है, ये जो मेरा एम्पलीट्यूड है दिस इज a इज इक्वल टू a into e to the power minus b into t by twice of m। So इस केसेस में अगर हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, मतलब टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो इट शुड बी दिस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो दिस विल बी क्या चीज दिस। अब हम क्या देख रहे हैं कि शोज दैट द टोटल एनर्जी जो है ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द टाइम। तो टोटल एनर्जी भी सिस्टम का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। एंड एक चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने कहा कि स्मॉल डैम्पिंग का मतलब क्या है कि b by रूट अंडर km इट शुड बी मच लेस देन द 1। दिस इज द केस ऑफ स्मॉल डैम्पिंग। ये इंश्योर करता है कि जो आपका जो ओमेगा प्राइम जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, क्योंकि इस एज्यूम्पशन पे बेसिस पे ये जो एज्यूम्पशन है ये तय करता है कि ये जो इक्वेशंस है आपका, इसमें इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये बताता क्या चीज है कि ये स्मॉल डैम्पिंग के केस को एक्सपीरियंस करता है, मतलब ये बताता है जो है। तो ऑफ कोर्स एज वी एक्सपेक्टेड इफ यू पुट b इज इक्वल टू 0, अगर सारे इक्वेशंस में अगर हमसे b को 0 डाल दें तो वी विल गेट द सेम इक्वेशंस एज जो अनडैम्प्ड ऑक्सीलेटर के केस में हमें मिलता है। एंड नाउ दिस इज द केस ऑफ प्रॉब्लम। मैंने इस प्रॉब्लम के सारे कंसेप्ट आपको अपने थ्योरी में बता दिया है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको बनावे, सॉल्व करें, एंड अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप ये हमसे पूछ सकते हैं जो है।